Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is air is everywhere. Tickle your brain to answer. Have you ever seen air? क्या आपने कभी हवा देखी है? How can you say that there is air all around us? और अगर कभी देखी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके चारों तरफ हवा है? Let's find it out in this chapter. Air is all around us. We cannot see but we can feel air. All living things need air to breathe. हमारे चारों तरफ air है. We cannot see them, देख नहीं सकते हैं, but we can feel them. और air हमारे life के लिए बहुत ज़्यादा important होती है. Moving air. We can feel air when it moves. Moving air is called wind. जब air move करती है तो हम उसे feel कर सकते हैं और moving air को ही wind कहा जाता है. When wind blows gently, it is called breeze. जब ये मंदा मंदा हवा चलती है, wind चलती है, उसे breeze कहते हैं. When wind blows very fast, it is called storm. और जब ये wind बहुत intensify हो जाती है, तेज चलने लग जाती है, तो उसे storm कहते हैं, आंधी तूफान कहते हैं. Activity. Let some sand fall from your hand. The way the sand gets blown is the way the wind is blowing. अपने हाथ में sand लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए. जिस direction में आपका sand move करेगा, उसी direction में आपकी wind भी चल रही होगी. Wind helps hot air balloons, airplanes and birds to fly. Air की मदद से ही आपकी hot air balloons, यहाँ तक कि airplanes और birds भी fly कर पाती हैं. When the wind blows, it carries small seeds to new places. It is called seed dispersal. हवा की मदद से ही जो छोटे छोटे seeds होते हैं आपके plants में, वो एक जगह से दूसरी जगह पे travel करते हैं और वहाँ पर grow करते हैं. इस process को कहा जाता है seed dispersal. Wind can make things move. It can move sail, boats, kites and windmills. जो विंड होती है वो चीज़ों को मूव भी करा सकती हैं. कुछ आपकी ऐसी बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं जो हवा की वजह से ही सेल कर पाती हैं. विंड मिल्स भी विंड की वजह से ही चलते हैं, यहाँ तक कि काइट्स भी हवा की वजह से ही उड़ पाती हैं. Know it too. Smoke, dust and germs make the air impure. Impure air is not good for health. Germs in the air may cause diseases. आपकी हवा में अलग अलग टाइप के डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स भी होते हैं जो हम अगर इनहेल करेंगे तो हमारे लिए हेल्दी बिल्कुल नहीं होते. What does air contain? Air is a mixture of several gases and many substances. Some of them are water vapor, dust, smoke, germs, etc. तो एयर में आपकी अलग अलग टाइप की गैसेस प्रेजेंट हैं और अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, इन सारी चीजों को मिलाकर ही एयर बनती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. नंबर 1, एयर हैज वेट. एयर में वजन होता है. Tie 2 balloons, one empty and other filled with air, to the 2 separate ends of a stick. Now tie a thread at the center of the stick and try to balance the stick in air. You will see that the air-filled balloon has more weight than the empty one. This shows that the air has weight. तो आप स्टिक लीजिए, एक साइड पे इन्फ्लेटेड बलून और दूसरी साइड पे खाली बलून छोड़ दीजिए. जब आप एक थ्रेड से उसे पकड़ेंगे तो जिस साइड आपका खाली बलून होगा उस साइड वो बेंड हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि एयर जो होता है उसमें वजन होता है. नंबर 2, एयर फिल्स स्पेस. जो एयर होता है वो जगह भी घेरता है. Push an empty glass into a bucket of water. When the glass is tilted, air bubbles come out the glass and the water starts to enter the glass. This shows that air fills space. आप कोई एक बाल्टी लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है, खाली मग उसमें डालिए. जैसे ही आप उसको टिल्ट करेंगे धीरे धीरे बबल्स निकलेंगे और उसके बाद आपका वाटर जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि जो एयर है वो जगह भी घेर कर रखता है. अगर बबल्स नहीं निकलेंगे तो वाटर भी फिल नहीं हो पाएगा. Number 3, air exerts pressure. Take a balloon and inflate it. As you keep on inflating it, it will keep on increasing its shape.
After reaching its maximum shape, it would get burst if you keep on inflating it. This shows that air exerts pressure. एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. अगर आप एक बलून को इन्फ्लेट करते रहेंगे, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता रहेगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका बलून फट जाएगा, जिसका मतलब है कि एयर जो होता है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है. एक्टिविटी. सर्कल द थिंग्स दैट चेंज देयर शेप व्हेन दे आर फिल्ड विद एयर. तो नीचे आपकी अलग अलग चीजें लिखी हैं, उसमें से आपको वो सर्कल करना है जैसे ही उसमें आप हवा डालने से वो जो शेप है चीज की वो चेंज हो जाती है. नंबर 4, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. Take 2 candles and 2 glass jars, one having hole in it and the other without any hole. With the help of an elder, light the candles and cover them with the jars. After a while, the candle under the glass jar not having a hole will stop burning. This happens because in closed jar there is no air. This shows that air is needed for burning. चीजों को जलाने के लिए भी एयर की जरूरत होती है. 2 कैंडल्स लीजिए, 2 जार लीजिए, एक जार में छेद करिए, दूसरे में मत करिए. जब आप उसको जला देंगे कुछ टाइम के बाद जो जार में होल नहीं है उसका कैंडल बुझ जाएगा, लेकिन जो होल वाला है उसकी कैंडल जलती रहेगी. इससे पता चलता है कि एयर का प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए. नंबर 5, एयर हैज वाटर वेपर. Air contains water in the form of water vapors. If we keep a glass of cold water out of refrigerator, we see the water droplets on its outer surface after some time. एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं. आप फ्रिज से कोई भी ठंडे पानी का ग्लास निकालिए, थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए, आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. ये कुछ नहीं है बल्कि वाटर वेपर्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं. फ्रेश एंड डर्टी एयर. When we clean our house, the dust mixes with air. जब भी आप घर साफ करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. The dust makes the air dirty. Dirty air is called polluted air. Smoke from vehicles and factories also make the air polluted. इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के बाद आपकी जो हवा है वो प्रदूषित यानी कि polluted हो जाती है. इसके अलावा जो व्हीकल्स होते हैं उनसे कार्बन एमिशंस होते हैं, फैक्ट्री से एमिशंस होते हैं, उनसे भी आपकी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है. Air also contains germs. When we cough or sneeze, the germs mix with the air. These germs make the air dirty. These germs spread diseases. So, we must cover our nose and mouth while coughing or sneezing. आपकी एयर में अलग अलग टाइप के जर्म्स भी होते हैं. जब कभी आप खांस देते हैं या स्नीज कर देते हैं तो आपके जर्म्स के पार्टिकल्स पूरे एयर में मिक्स अप हो जाते हैं एंड इट इज नॉट हेल्दी उस एनवायरमेंट में सांस लेना. टू कीप एयर फ्रेश वी शुड, हवा को साफ रखने के लिए कुछ चीजें हमें करनी चाहिए. नेवर बर्न वेस्ट एंड ड्राई लीव्स. कभी भी जो वेस्ट और ड्राई लीव्स होती है उसे मत जलाइए. उससे जो स्मोक निकलता है उससे भी आपकी हवा प्रदूषित होती है. Use vehicles like bicycle to travel for short distance or prefer to walk. छोटे डिस्टेंसेस के लिए बाइसिकल या फिर पैदल चलकर जाइए. Grow plants and trees everywhere as they take up polluted air and make the air clean and fresh. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करिए क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके एयर को सारे पोल्यूटेंट से फ्री कर देते हैं. एक्टिविटी. In a dark room, light a torch. Do you see some particles moving in air? These are dust particles. एक कमरे में सारी लाइटें बंद कर दीजिए और एक टॉर्च जलाइए. जहां पे आपकी टॉर्च की लाइट होगी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे. These are the dust particles. Keep in mind. Air, a mixture of gases, water vapor, smoke, dust and germs. Germs, very small living things that can make us fall sick. Wind, moving air. Breeze, a gentle wind. Storm, a strong wind which blows very fast. तो एयर में बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस होते हैं. जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं. विंड मूविंग एयर होती है. जो हल्की हल्की विंड होती है उसको ब्रीज कहते हैं और बहुत तेज जब ये विंड चलने लग जाती है तो उसको स्टॉर्म या फिर आंधी कहा जाता है. Wrap it up.
We cannot see, but we can feel air. We can feel air when it moves. When wind blows very fast, it is called storm. Wind can make things move. Air has weight, it fills up space and it exerts pressure. Dirty air is called polluted air. तो हमने इस चैप्टर में देखा that we have air around us every time, but we cannot see it but feel it. मूविंग एयर को विंड कहते हैं, हल्की हल्की विंड को ब्रीज कहते हैं, बहुत तेज विंड को स्टॉर्म कहते हैं, और डर्टी एयर होती है जिसको पोल्यूटेड एयर कहा जाता है. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ ग्रो करें. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.